बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़ मुकालमा। इस सेशन में हम मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की मश्क करेंगे। मुकालमा किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। तो गुफ्तगू दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान हो सकती है। तो जब बातचीत दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान हो उसे मुकालमा कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अफराद एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसे हम मुकालमा कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इम्तिहान के पर्चे में इक़्तिबास और नज़्म ही की तरह एक मुख्तसर मुकालमा दिया जाता है। उसके नीचे सवालात होते हैं। हर सवाल के नीचे मुतबादिल जवाबात दिए जाते हैं। आपको सही जवाब के नंबर पर साया करना होता है। मुकालमे और उन पर मबनी सवालात के सही जवाबात देने के लिए चंद बातों को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले मुकालमा तवज्जो के साथ पढ़ें। मुकालमा पढ़ते वक्त बयान वाक़े पर तवज्जो दें। इसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात, मुकालमा कब, कहाँ, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया वगैरह, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा तलबा भी इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ये तो आप जानते ही हैं कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। तो मुकालमा कहाँ, कब, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ,
ایسا کس نے کہا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان نکات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ تیسری اہم بات، قوت فکر بروئے کار لاتے ہوئے صحیح جواب تک پہنچیے۔ مشق کے وقت ہم دیکھیں گے کہ چند سوالات ایسے بھی پوچھے جاتے ہیں جن کے سیدھے جوابات مکالمے میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا ہے، اپنی سابقہ معلومات کا استعمال کرنا ہے۔ تو قوت فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے صحیح جواب تک پہنچیے۔ اور آخر میں مکالمے کے تحت کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا اقتباس اور نظم میں 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح مکالمے کے تحت کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سیشن، تفہیم یعنی پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا۔ آج ہم مشق کریں گے مکالمے اور ان پر مبنی سوالات کی۔ تفہیم، پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا، مکالمہ نمبر 3۔ سب سے پہلے ہم ہدایت پڑھیں گے۔ درج ذیل مکالمے پڑھیے اور ان کے نیچے دیے گئے سوالوں کے جوابات تلاش کر کے صحیح جواب کے متبادل نمبر والے دائرے میں رنگ بھر دیجیے۔ مکالمہ توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ مکالمہ کتنے افراد کے درمیان ہوا ہے، کب ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، ان تفصیلات پر توجہ دیں۔ ڈاکٹر برہان دور ہی سے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی، وعلیکم السلام، بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح دیکھا جاتا۔ برہان، معاف کیجئے، آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہیں ملی، بڑا مصروف رہا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں، بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ برہان، بخار دیکھا؟ بیگم، تھوڑی دیر پہلے 100 تھا۔ برہان، سینے میں درد تو نہیں؟ زیدی، نہیں۔ برہان، شکر ہے، اور کوئی بات؟ بیگم، گھبراہٹ سی ہے۔ برہان، کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے۔ زیدی، یہ ٹھیک ہے۔ مکالمے کا بغور مطالعہ ہم نے کیا۔ مطالعہ کرتے وقت چند اہم باتوں کو ذہن نشین بھی کر لیا، مثلا مکالمہ کہاں ہوا، کب ہوا، کس کے درمیان، کس موضوع پر ہوا اور کس نے کیا کہا۔ تو مکالمہ کتنے لوگوں کے درمیان ہوا؟ نمبر 1 ڈاکٹر برہان، نمبر 2 زیدی اور بیگم۔ تو اس طرح اس مکالمے میں یہ 3 لوگ شریک تھے۔ کہاں ہوا؟ تو بات چیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیدی کے گھر میں ہوا، کیونکہ ڈاکٹر برہان گھر میں تشریف لاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیدی کے گھر میں ہوا۔ کب ہوا؟ تو یہاں ڈاکٹر برہان بتاتے ہیں کہ انہیں آنے میں دیر کیوں ہو گئی، دیر سے آنے کی وجہ بتاتے ہیں
کہ شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے تھے کہ فرصت ہی نہیں ملی۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں اس مکالمے پر مشتمل سوالات۔ سوال نمبر 1، ڈاکٹر برہان زیدی صاحب سے ملنے کس وقت تشریف لائے؟ متبادلات ہیں، نمبر 1 صبح، نمبر 2 رات، نمبر 3 شام، یا نمبر 4 دوپہر۔ مکالمے میں ڈاکٹر زیدی اپنے دیر سے آنے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ تو ڈاکٹر برہان زیدی صاحب سے ملنے کس وقت تشریف لائے؟ شام کے وقت۔ متبادل نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے، لہٰذا ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر برہان کو آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ متبادلات ہیں، نمبر 1 ان کا ٹیمپریچر 100 ہو گیا تھا، نمبر 2 دوپہر میں 2 کیسز آ گئے تھے، نمبر 3 ان کے سینے میں درد تھا، یا نمبر 4 شام سے پہلے 2 کیسز آ گئے تھے۔ مکالمے کے اس حصے میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ ڈاکٹر برہان کہتے ہیں، معاف کیجئے، آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ تو ڈاکٹر برہان کے دیر سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ شام سے پہلے 2 کیس آ گئے تھے اور وہ مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر برہان کو آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ متبادل نمبر 2 دوپہر میں 2 کیسز آ گئے تھے، اس لیے ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ سوال نمبر 3، اس مکالمے میں کتنے افراد شامل ہیں؟ تو اس مکالمے میں ڈاکٹر برہان ہیں، بیگم اور زیدی صاحب، تو کل کتنے افراد ہوئے؟ 3۔ اس مکالمے میں کتنے افراد شامل ہیں؟ متبادل نمبر 3 افراد، لہٰذا ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ تفہیم پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا۔ مکالمہ نمبر 4۔ ایک دن چپ کی زبان میں موتی نے کہا، اب تو نہیں سہا جاتا ہیرا۔ ہیرا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ موتی، تم تو کسی طرح نکلنے ہی نہیں دیتے، آؤ آج رسا توڑا کر بھاگ نکلیں۔ ہیرا، ہاں ٹھیک ہے، مگر اتنی موٹی رسی ٹوٹے گی کیوں کر؟ موتی، پہلے رسی کو چبا لو، پھر جھٹکا دے کر توڑا لو۔ رات کو جب لڑکی روٹیاں دے کر چلی گئی تو دونوں رسیاں چبانے لگے، پر موٹی رسی منہ میں نہ آتی تھی۔ بیچارے بار بار زور لگا کر رہ جاتے تھے۔ امان گھر کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی نکلی، دونوں سر جھکا کر اس کا ہاتھ چاٹنے لگے۔ وہ دونوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی، اس نے ان کی پیشانی سہلائی اور بولی، کھول دیتی ہوں، بھاگ جاؤ، نہیں تو یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔
आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारी नाक में नाथ डाल दी जाए। ये मुकालमा मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कहानी से माखूज है। हीरा और मोती, इन दो बैलों की ये कहानी है। सवाल नंबर 1, हीरा और मोती किसके नाम हैं? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 दो शेरों के, नंबर 2 दो लड़कियों के, नंबर 3 दो बैलों के, या नंबर 4 दो बिल्लियों के। मुंशी प्रेमचंद की कहानी का जो हिस्सा मुकालमे के तौर पर दिया गया है, उसमें साफ तौर पर कहीं नहीं लिखा कि हीरा और मोती कौन हैं, मगर बातचीत से आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि हीरा और मोती दो बैल हैं। जैसे कहानी में जिक्र है कि रस्सी तुड़ाकर भाग जाना, रस्सी चबाना, इसके अलावा नाक में नाथ डाल दी जाएगी, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हीरा और मोती दो बैल हैं, दो शेर नहीं हैं, दो लड़कियां नहीं हैं, दो बिल्लियां भी नहीं हैं, बल्कि हीरा और मोती दो बैल हैं। ये दो बैलों के नाम हैं। हीरा और मोती किसके नाम हैं? मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है, दो बैलों के। जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 2, पहले रस्सी को चबा लो फिर झटका देकर तुड़ा लो। ये जुमला किसने कहा? मुतबादिल नंबर 1 मोती ने, मुतबादिल नंबर 2 हीरा ने, मुतबादिल नंबर 3 लड़की ने, या नंबर 4 घर वालों ने। तो मुकालमा अगर आपने बगौर पढ़ा है तो इस सवाल का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं है। हीरा जब कहता है कि इतनी मोटी रस्सी टूटेगी क्यों कर, तब मोती जवाब देता है पहले रस्सी को चबा लो फिर झटका देकर तुड़ा लो। तो ये किसने कहा? मोती ने। सवाल नंबर 2, पहले रस्सी को चबा लो फिर झटका देकर तुड़ा लो। ये जुमला किसने कहा? अब आप बता सकते हैं। ये जुमला मोती ने कहा। तो मुतबादिल नंबर 1 मोती इस सवाल का सही जवाब है। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 3, हीरा और मोती की नाक में नाथ कौन डालने वाला था? नंबर 1 लड़की, नंबर 2 कोई नहीं, नंबर 3 पड़ोसी, या नंबर 4 घर वाले। याद कीजिए लड़की ने क्या कहा बैलों से? वो दोनों के बीच में खड़ी हो गई। वो यानी लड़की दोनों बैलों के बीच में खड़ी हो गई। उसने उनकी पेशानी सहलाई और बोली, खोल देती हूं, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिर उसने कहा, आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारी नाक में नाथ डाल दी जाएगी। तो लड़की ने बता दिया कि घर में मशवरा हो रहा है कि तुम दोनों की नाक में नाथ डाल दी जाएगी। इसका मतलब नाक में नाथ कौन डालने वाला था? घर वाले। हीरा और मोती की नाक में नाथ कौन डालने वाला था? मुतबादिल नंबर 4 घर वाले। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे।
पढ़ कर ख्याल और तसव्वुर को समझना यानी तफहीम। अब हम देखेंगे मुकालमा नंबर 5। ये है मुकालमा। आइए इसका बगौर मुताला करें। तुम सोई नहीं आलिया बेटी? दुआ खत्म करके करीमन बुआ ने पूछा। नींद नहीं आई करीमन बुआ, और वो चुप हो गई। क्या भूख लगी है बिटिया को? एक रोटी उलट दूं आग जलाकर? नहीं करीमन बुआ, शायद पढ़ने की आवाज से जी भर आया है। तो तुम सोई नहीं आलिया बेटी किसने कहा? करीमन बुआ ने। इसका मतलब ये मुकालमा आलिया और करीमन बुआ के दरमियान हुआ। आलिया ने क्या जवाब दिया? नींद नहीं आई करीमन बुआ, और इतना कहकर वो चुप हो गई। इस पर करीमन बुआ ने कहा, क्या भूख लगी है बिटिया को? एक रोटी उलट दूं आग जलाकर? आलिया ने जवाब दिया, नहीं करीमन बुआ, शायद पढ़ने की आवाज से जी भर आया है। तुमको दादी से कितनी मोहब्बत थी करीमन बुआ? शायद दादी भी तुमको उतना ही चाहती होंगी। क्या मालकिन मुझे थी? करीमन बुआ ने उल्टा सवाल कर दिया। तुमने दादी का जमाना नहीं देखा बिटिया, पता नहीं वो किसको चाहती थी भी या नहीं। हाँ, सिर्फ छोटे मियाँ को चाहती थी, जो पता नहीं कहाँ खो गए। उन्हें खिलाफत के जलसे ले गए। हम तो नौकर लोग थे आलिया बेटा, हमारी क्या हैसियत। ये मुकालमा 2 अफराद के दरमियान हुआ, आलिया और करीमन बुआ के दरमियान। करीमन बुआ कौन है? करीमन बुआ नौकरानी है। मौजू क्या है इस मुकालमे का? आलिया की दादी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें याद कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस मुकालमे पर मुश्तमिल सवालात कौन से हैं। सवाल नंबर 1, नींद किसे नहीं आ रही थी? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 करीमन बुआ को, नंबर 2 मालकिन को, नंबर 3 आलिया को, या नंबर 4 दादी को। तो मुकालमे की शुरुआत में ही करीमन बुआ आलिया को पूछती हैं, तुम सोई नहीं आलिया बेटी? आलिया करीमन बुआ को जवाब देती है, नींद नहीं आई करीमन बुआ। तो नींद किसे नहीं आ रही थी? आलिया को। सवाल नंबर 1, नींद किसे नहीं आ रही थी? इसका सही जवाब मुतबादिल नंबर 3, आलिया को। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 2, दादी किसे चाहती थी? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 करीमन बुआ को, नंबर 2 छोटे मियाँ को, नंबर 3 आलिया को, या नंबर 4 किसी को भी नहीं। तो करीमन बुआ बयान करती हैं दादी किसे चाहती थीं। यहाँ करीमन बुआ आलिया को बता रही हैं, हाँ सिर्फ छोटे मियाँ को चाहती थीं, जो पता नहीं कहाँ खो गए। तो दादी किसे चाहती थीं? छोटे मियाँ को। तो सवाल नंबर 2, दादी किसे चाहती थीं? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, छोटे मियाँ को। तो हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे।
सवाल नंबर 3, करीमन बुआ कौन है? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 दादी, नंबर 2 बुआ, नंबर 3 माँ। करीमन बुआ किसी बात के जवाब में आलिया से कहती हैं, हम तो नौकर लोग थे आलिया बेटा, हमारी क्या हैसियत। इस जुमले से पता चलता है करीमन बुआ नौकरानी हैं। करीमन बुआ कौन है? मुतबादिल नंबर 4 सही जवाब है, नौकरानी। लिहाजा हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। जुज नंबर 1 तफहीम के ज़ैली जुज मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की मश्क हमने की। अब हम चंद अहम बातों का इआदा करेंगे। मुकालमा किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। तो गुफ्तगू 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान हो सकती है। तो जब बातचीत 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान हो उसे मुकालमा कहते हैं। मुकालमे और उन पर मबनी सवालात के सही जवाबात देने के लिए चंद बातों को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले मुकालमा तवज्जो के साथ पढ़ें। मुकालमा पढ़ते वक्त बयान वाक़े पर तवज्जो दें। इसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात, मुकालमा कब, कहाँ, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया वगैरह, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा तलबा भी इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ये तो आप जानते ही हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। तो मुकालमा कहाँ, कब, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा आपको इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। तीसरी अहम बात, क़ुव्वत फ़िक्र बरोए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। मश्क के वक्त हम देखेंगे कि चंद सवालात ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनके सीधे जवाबात मुकालमे में मौजूद नहीं हैं। इसके लिए आपको गौर फ़िक्र करना है, अपनी साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करना है। तो क़ुव्वत फ़िक्र को बरोए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। और आखिर में मुकालमे के तहत कम अज कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। तो हमने देखा इक़्तिबास और नज़्म में 3 सवालात पूछे जाते हैं।
بالکل اسی طرح مکالمے کے تحت کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔